Xinjiang holds a special place in the hearts of Pakistanis, as our neighboring region with long-standing cultural and historic linkages. It is not only a channel of trade and transportation, but also as a vital bridge that connects our two great nations. پاکستان چین کے ساتھ اپنی لازوال تصویراتی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ سنکیانگ صرف تجارتی اور مواصلاتی راہداری نہیں بلکہ دو عظیم قوموں کو جوڑنے کا باعث ہے۔ ہمسایہ ہونے کے ساتھ ساتھ مشترکہ ثقافت کی وجہ سے سنکیانگ پاکستانیوں کے دلوں میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سنکیانگ یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب۔ مشرق وسطی میں غزہ کی تشویشناک صورتحال پر انتہائی رنجیدہ ہوں۔ دنیا میں بسنے والے مختلف مکاتب فکر کے کروڑوں افراد فلسطینی شہری آبادی پر اسرائیل کے جاری مظالم کی شدید مذمت کر رہے ہیں۔ سب کا مطالبہ ہے کہ اس ظلم اور بربریت کو فوری طور پر روکا جائے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ پاکستان اور چین کی دوستی کا رشتہ منفرد ہے جو اعتماد، بھروسے اور باہمی احترام کے رشتوں پر استوار ہے۔ یہ شراکت داری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مستحکم سے مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی طلباء سنکیانگ آ کر جدید شعبوں میں تعلیم حاصل کریں اور دونوں اطراف سے سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے سنکیانگ یونیورسٹی کے طلباء سے گفتگو۔ کرکٹ ورلڈ کپ آج پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں بنگلور میں ہوں گی مد مقابل۔ میچ دن 1:30 بجے سے پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ ایونٹ میں پاکستان 3 میں سے 2 میچز جیت کر چوتھے نمبر پر موجود۔ آسٹریلوی ٹیم کی 3 میں سے 1 میچ میں فتح اور 2 میں ناکامی کے بعد چھٹی پوزیشن۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا آج میچ ہے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان جیتے گا انشاءاللہ اس میچ میں اور سیمی فائنل میں بھی جائے گا۔ سارے پلیئر سے بھی ہمیں پوری امید ہے، بابر اعظم سے پوری امید ہے کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے، فائنل میں جائیں گے انشاءاللہ، پورا پاکستان کے جیتیں گے انشاءاللہ۔ آج جیتے گا، ہمیں بہت آس امید ہے اس پہ، پاکستان پہ کہ وہ آج جیتے گا۔ بابر اعظم، عبداللہ شفیق، رضوان، افتخار احمد اچھا کھیل پیش کر رہے تھے، آج بھی امید ہے آپ اچھا کھیلیں گے انشاءاللہ۔ عالمی کرکٹ کپ کے اہم میچ میں قومی ٹیم آسٹریلیا کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے کرکٹ شائقین پاکستان کی کامیابی کے لیے پر امید۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 250 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 50,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کر گیا۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر 55 پیسے مزید سستا، ڈالر کی قیمت 278 روپے ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز کے انسانیت سوز مظالم، غزہ میں نہتے شہریوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری۔ غزہ میں چرچ پر فضائی حملے میں کم از کم 8 افراد مارے گئے۔ 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری صہیونی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 3,785 ہو گئی، 12,200 سے زائد افراد زخمی۔ غزہ کی مکمل ناکہ بندی سے بحران المیہ میں تبدیل ہو گیا۔ 20 ٹرکوں پر مشتمل امداد کی پہلی کھیپ آج مصر کے رفح کراسنگ سے غزہ کے لیے روانہ کیے جانے کا امکان۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے شکار فلسطینی عوام کی مدد کے لیے عملی اقدام۔ پاکستان سے خصوصی طیارہ 81 ٹن امدادی سامان لے کر مصر کے العریش انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ مصر میں پاکستان کے سفیر ساجد بلال نے غزہ میں فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے لیے امداد حوالے کی۔ پاکستانی عوام اور قیادت کا مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ غزہ میں فوری جنگ بندی ہی مسئلے کا حل ہے۔ مشال ملک کہتی ہیں غزہ میں قیامت برپا ہے، ہر شخص خون کے آنسو بہا رہا ہے۔ نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اقوام عالم اسرائیل پر پابندی عائد کرے، غزہ میں فوری جنگ بندی ہی مسئلے کا حل ہے۔ مشیر انسانی حقوق مشال ملک کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔
पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी का मरहला जारी। 31 अक्टूबर की डेड लाइन के ऐलान के बाद अफगान शहरियों की रज़ाकाराना तौर पर वतन वापसी का सिलसिला जारी। 3248 अफराद पर मुश्तमिल मजीद 215 खानदान वतन वापस लौट गए। अफगानिस्तान वापस जाने वाले पनाह गुज़ीनों की मजमूई तादाद 51,756 हो गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के डेड लाइन में सिर्फ 11 दिन रह गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मजीद एक दिन की भी मोहलत फ्राहम न करने का हतमी फैसला। पाकिस्तान ना छोड़ने की सूरत में गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान। जिला बाजोड़, मेमन, खैबर, स्वात, दीर और चित्राल में मुकीम गैर मुल्कियों के कवायद की चेकिंग। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ कल दुबई से वतन वापस पहुंचेंगे। मुल्क भर में इस्तकबाल की तैयारियां जारी। कराची, कोयटा और गिलगित बल्तिस्तान से काफिले लाहौर की जानिब रवां दवां। और बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज। पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम कप्तान निदा डार की क़यादत पे बरास्ता दुबई ढाका रवाना। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ख़वातीन टीमों के दरमियान 3 टी20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 25 अक्टूबर को चिट्टोग्राम में टी20 मैच से होगा। China stands ready to work with Pakistan and make new contribution for peace, stability and prosperity of the region and the world. The Chinese side should be rest assured that Pakistan will not take an inch back when it comes to our relationship with China. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि चीन के साथ अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। शीजोंग यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स, माहिरीन तालीम और तलबा के बड़े इज्तिमा से खिताब में गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन समेत हर महज़ब माशरा फ़लस्तीन पर जारी बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करता है। वज़ीर आज़म के खिताब की तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद। सिंकियांग यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सिंकियांग सिर्फ तिजारती और मवासलाती राहदारी नहीं बल्कि दो अजीम कौमों को जोड़ने का बाइस भी है। सिंकियांग की अहमियत उजागर करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि हमसाया होने के साथ साथ मुश्तरका सकाफत की वजह से ये इलाका पाकिस्तानियों के दिलों में खसूसी मकाम रखता है। Xinjiang holds a special place in the hearts of Pakistanis. As our neighboring region with long-standing cultural and historic linkages, it is not only a channel of trade and transportation, but also as a vital bridge that connects our two great nations. Our time-tested ties have remained unaffected by vicissitudes of time. In Pakistan, we have a complete consensus across political spectrum. गजा की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि फलस्तीनी शहरी आबादी पर इसराइल की जारी बर्बरियत की पाकिस्तान समेत हर मुहज़्ज़िब माशरा शदीद मुज़म्मत कर रहा है। I am saddened in an environment where the situation in Middle East, particularly with reference to Gaza, this act of barbarism has appalled everyone, including Pakistani nation, including Chinese nation, including other nations around the globe. We appeal and we will play our role to stop this barbaric act against the innocent Palestinian civilians. BRI के फ्लैगशिप मंसूबे चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के हवाले से वजीर आज़म ने कहा कि सीपैक अपनी तामीर के नए दौर में दाखिल हो चुका है, जिसमें सनतों की तरक्की, रोजगार की फराहमी, मादनियात, ज़राअत और IT के शोबे तरजीहात में शामिल हैं। My visit is essentially about charting a new roadmap and envisioning a new future based on economic synergy and greater connectivity.
people-to-people bonds, sustainable development, peace and stability, and educational and technical exchanges. The key element of Pakistan's vision for cooperation with Xinjiang include continued reaffirmation of Pakistan's principled position on Xinjiang and our unequivocal support to China on matters related to its core interest. वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का रिश्ता मुनफरिद है जो एतमाद, भरोसे और बाहमी एहतराम के रिश्तों पर उस्तवार है। उन्होंने कहा कि ये शराकत दारी वक्त गुजरने के साथ साथ मुस्तहकम से मुस्तहकम होती चली जा रही है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म की सिंकियांग एगोर खुद मुख्तार इलाके के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज उरमची में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की पोलिट ब्यूरो के मरकजी मेंबर और सिंकियांग एगोर खुद मुख्तार इलाके के पार्टी सेक्रेटरी मिस्टर माजंगोई के साथ मुलाकात की है। चीन के साथ दोस्ती के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का संग बुनियाद और इलाकाई अमन व तरक्की का ज़ामिन है। इसी हवाले से बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मजहर अब्बास, उनसे तफसीलात लेते हैं। मजहर अब्बास, तवातुर के साथ जारी अहम मुलाकातों का सिलसिला, एक और अहम मुलाकात हुई है, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है वो इस वक्त उरमची में मौजूद हैं और आज उनकी बड़ी अहम जो है वो मुलाकातें हुई हैं। अभी अब से कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने उरमची में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पोलिट ब्यूरो के मरकजी मेंबर और सिंकियांग एगोर खुद मुख्तार इलाके के पार्टी सेक्रेटरी मिस्टर माजिंगोई के साथ मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान का असासा है और पाकिस्तान जो है हमेशा चीन को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का संग बुनियाद और इलाकाई अमन व तरक्की के ज़ामिन हैं। उन्होंने बीजिंग में सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कियांग के साथ मुलाकातों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से चीनी क़यादत से बातचीत हुई है और मजबूत ज़ाती अज़्म को जो है चाइना के वो सराहा गया है। पाकिस्तान के लिए सिंकियांग की अहमियत का इआदा करते हुए वज़ीर आज़म ने मुलाकात के दौरान कहा कि ये खित्ता पाकिस्तान के साथ जोग्राफियाई, तारीखी और सकाफती वाबस्तगी की वजह से एक ख़ास अहमियत रखता है। उन्होंने सिंकियांग और पाकिस्तान को हमसाया इलाकों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी से लेकर सकाफती और अवाम से अवाम तक के ताल्लुकात तक ताउन के मुख्तलिफ शोबों में रवाबित को गहरा करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म के सिंकियांग के दौरे करने पर वज़ीर जो है वो शुक्रिया अदा करते हुए पार्टी के सेक्रेटरी माजिंगोई ने कहा कि मुतअद्दिद शोबों में पाकिस्तान और सिंकियांग ताल्लुकात को गहरा करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। उन्होंने सिंकियांग की जानिब से पाकिस्तान में कारोबार और तिजारत के मौके तलाश करने और खुंजराब सुस्त बॉर्डर क्रॉसिंग के ज़रिए तजारती और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद आसान बनाने के लिए जो है वो आमादगी ज़ाहिर की है और इस आज़म का इजहार किया है कि इन ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। दोनों फरीकों ने सिंकियांग और पाकिस्तान के पड़ोसी इलाकों के दरमियान ताउन की मुकम्मल सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है और इस अज़्म का इआदा किया है कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान जो है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान तरक्की की नई राहें खुलेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का रिश्ता मुनफरिद है जो एतमाद, भरोसे और बाहमी एहतराम के रिश्तों पर उस्तवार है। सिंकियांग यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी तलबा सिंकियांग आकर जदीद शोबों में तालीम हासिल करें। शाहरुख शफी की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सिंकियांग यूनिवर्सिटी आमद पर सदर और एकेडमी स्टाफ ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सिंकियांग यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात की और इस मौके पर अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी तलबा सिंकियांग आकर जदीद शोबों में तालीम हासिल करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का रिश्ता
मुनफरिद है, जो एतमाद और भरोसे और बाहमी एहतराम के रिश्तों पर इस्तवार है। You all have to operate tourists in Pakistan. 你们应该鼓励更多的中国游客去巴基斯坦。 Start your own business and bring more tourists to Pakistan. 对。 And bring Pakistani tourists to China. 也要坚持学习，把更多的中国游客带到巴基斯坦，也要把更多的巴基斯坦游客带回中国。 That should be the aim, to bring people more close. 这就是人文交流。 It's your national duty. Okay. Thank you, everyone. 谢谢大家。 तलबा ने वज़ीर आज़म के साथ ग्रुप फ़ोटो बनवाया, जिसके बाद वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सिंकियांग यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री म्यूज़ियम का दौरा किया और उनको सिंकियांग यूनिवर्सिटी की 99 साला तारीख पर ब्रीफिंग दी गई। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का औरमची में मसरूफ़ दिन। वज़ीर आज़म सिंकियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कोर के रहनुमा और सिंकियांग के मारूफ ताजरों से मुलाकात करेंगे। और अभी आपको लिए चलेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की खबरों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की। आईसीसी वर्ल्ड कप के 18वें मैच में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें बेंगलुरु में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दिन 1:30 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान एक रोजा मुकाबलों के रिकॉर्ड की तफसील जानते हैं निसार मेहदी की इस रिपोर्ट में। That sounded really nice. आईसीसी वर्ल्ड कप में अब मुकाबला होगा 1999 की फाइनलिस्ट टीमों के दरमियान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया अब तक 3-3 मैचेस खेल चुके हैं। एक रोजा क्रिकेट की तारीख में दोनों टीमें 107 मरतबा मद्दे मुकाबिल हुई। पाकिस्तान ने 34 मैचेस में कामयाबी हासिल की, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 69 मैचेस अपने नाम किए। एक मैच बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ और 3 मुकाबले बेनतीजा रहे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वर्ल्ड कप की तारीख में 10 बार एक दूसरे का सामना कर चुकी हैं, जिनमें से 4 मैचेस पाकिस्तान ने जीते, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैचेस में कामयाबी हासिल की। कौमी टीम को 2 मरतबा वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का एजाज हासिल है। 1992 में वर्ल्ड कप का ताज अपने सर सजाया, जबकि 1999 में ग्रीन शर्ट्स रनर्स अप रही। 5 मरतबा की आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 वर्ल्ड कप टाइटल्स जीतने का एजाज हासिल है। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के आज के मैच के हवाले से लाहौर वाले अपनी टीम की फतह के लिए पुरुमीद हैं। जिंदा दिलाने लाहौर का कहना है कि पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फतह के बाद कमबैक करेगी। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ये मैच जीते। पिछला मैच आ रहे हैं, अफसोस है। इस दफ़ा इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। इस बार पाकिस्तान उम्मीद है कि जीत जाएगा। पिछली दफ़ा तो बहुत दिल टूटा था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, जो बाबर आजम इंशाल्लाह इस बार आउट नहीं होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत बड़ी टीम है, इनको काफ़ी प्रैक्टिस की और मजबूत होकर खेलने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगर कभी दोबारा मुकाबला होगा तो हम इंडिया को भरपूर तरीके से हराएंगे, जैसे हमने चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था। इंशाल्लाह फिर इंडिया को सरप्राइज देंगे। और सॉर्ट ऑफ और चेंज हो, स्ट्रेटजी चेंज हो, तो हम ऑस्ट्रेलिया को बीट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया कॉम्पिटिटिव है, बट हम लोग स्टिल उनको बीट कर सकते हैं। मुल्क के लिए लड़ें, कोई बात नहीं, हार जीत होती है, लेकिन ऊपर चढ़ के मैच करें। और दूसरी जानिब शहर कायद वाले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। कराची वालों के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स आज के मैच में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। मजीद तफसील के लिए हमने राब्ता किया है अपनी नुमाइंदा नौरीन आसिफ से। नौरीन, कैसा जोश देख रही हैं शहर कायद के बासियों का?
जी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो आज मैच है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। कराची के जो शहरी हैं बहुत खुश हैं, अपनी टीम को फुली सपोर्ट कर रहे हैं, मोराल बहुत हाई है। लास्ट मैच में थोड़ा सा मसला हुआ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमारी टीम जो है वो कहीं भी उसमें कमी है। बेहतरीन परफॉर्मर हैं और अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बहुत खुश हैं, अपनी टीम को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं और आज इनके लिए क्या दुआ कर रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि अपनी टीम के लिए आपकी क्या सोच है और कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है हमारी टीम में? सोच तो हमेशा यही है कि हमारी टीम ऑलवेज हमेशा टॉप पे रहे। लास्ट मैच अनफॉर्चुनेटली हम नहीं सही खेल सके, बट अब यही हमारी सोच है कि इंशाल्लाह हमारी टीम टॉप पे जाए और हमेशा उसको परफॉर्म करते रहेंगे। हम सपोर्ट करते रहेंगे उसको हमेशा कि टॉप पे जाए। और मेरा बेस्ट प्लेयर मोहम्मद रिजवान है, इंशाल्लाह ही विल डू द बेस्ट। आपको किस प्लेयर से उम्मीदें हैं और अपनी टीम को क्या कहना चाहेंगे? उम्मीदें तो इंशाल्लाह लास्ट में जिस तरह अब्दुल्ला शफीक नहीं कर पाए उससे पहले सेंचुरी की, इंशाल्लाह आज भी उम्मीद यही है कि दोबारा सेंचुरी करे, क्योंकि हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप हर मैच में ही इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। तो बेस्ट विशेस है पाकिस्तान के लिए कि इंशाल्लाह आज अच्छे रन से अच्छे रन रेट से जीत जाए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के लिए? कैसी परफॉर्मेंस अब तक बाकी मैचेस में आपको देखने को मिली है? यही है कि पिछले मैच में कुछ प्रेशर ले गए थे शायद, तो यही बस अच्छा खेलें और अपने टीम को जिताएं। कौमी टीम को सपोर्ट करने के लिए सारे आज लोग यहाँ भी मैदान में नजर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है यकीनन बहुत दिलचस्प होने वाला है और आज जो फॉर्म में हमें हमारी टीम नजर आने वाली है उसको देखने के लिए सब लोग बेताब हैं। जी नौरीन आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान बेंगलुरु में टाकरा होगा। पेशावर में शहरी काफ़ी पुरजोश हैं। क्या कहना है पेशावर वालों का, जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवरुल्लाह खान से। अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर सदर में मौजूद हूँ। आज चूँकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच दिन 1:30 पर शुरू होगा, तो यहाँ पे पेशावर में मौजूद क्रिकेट के लवर जो है वो बहुत पुर उम्मीद है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस दफ़ा जो है पाकिस्तानी टीम जो है वो मैच जीतेगी। और इंशाल्लाह अगर हम देखें तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है ऑस्ट्रेलिया के बनिस्बत काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे क्रिकेट के लवर से मैं पूछना चाहूँगा कि वो उनके क्या जज्बात है, वो क्या कहते हैं आज के मैच के बारे में। जी इंशाल्लाह जुम्मे के दिन है, मैच तो ज़रूर देखेंगे और जज्बात तो ये है कि पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा आज। इस वक्त जो हम ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन देख रहे हैं वो कोई इतनी खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंडिया की टीम थोड़ी मजबूत टीम थी जिस वजह से हम उनसे आ रहे हैं, लेकिन आज के मैच में इंशाल्लाह हमारे जो प्लेयर्स हैं वो फुल फॉर्म में भी हैं। जिस तरह आपने पहले 2 मैचेस देखे श्रीलंका के खिलाफ और नीदरलैंड के खिलाफ, तो आज इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम विन करेगी। हमारा पॉइंट्स टेबल में जो है ना वो माइनस में चला गया है। जिस तरह के आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो -6 पे आ रहा है, तो हमें उम्मीद है कि ये लोग अपना माइनस क्लियर करेंगे और प्लस पॉजिटिव में चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि पेशावर में मौजूद क्रिकेट के शौकीन लोग जो है वो भी पुर उम्मीद है कि आज का मैच पाकिस्तान ही जीतेंगी। जी आज का मैच पाकिस्तान टीम जीतेगी। अनवरुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से बात करते हैं नाजरीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच में अहले बलोचिस्तान की दुआएं और नेक ख्वाहिशात कौमी टीम के साथ हैं। इस वक्त निगरान सूबाई वजीर खजाना और रेवेन्यू अमजद रशीद हमारे नुमाइंदे मीर सलाम जोगीजई के साथ ब्यूटिम्स यूनिवर्सिटी कोयटा में मौजूद हैं। आपसे शेयर करते हैं। जी, आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप क्रिकेट के हवाले से एक अहम मैच खेला जा रहा है, जिसके लिए न सिर्फ बलूचिस्तान के शायकीन बल्कि सूबाई वज़रा भी पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सूबाई निगरान वजीर अमजद रशीद। से पूरी कौम की एक्सपेक्टेशन है। इसी तरह से हमारी जो बलूचिस्तान और ख़ुसूसन हमारी जो यूथ हैं, इस वक्त यूनिवर्सिटी में मैं खड़ा हूँ ब्यूटम्स में, और हमारी दुआ है कि हमारी पाकिस्तानी टीम जो है ना वो आज फतह हासिल करे। और हम दुआ करते हैं कि हमारे जो प्लेयर हैं, बाबर आजम है और बाकी जो दूसरे खिलाड़ी हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। बाकी हार जीत तो जो है वो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हमारी मॉरल सपोर्ट यहाँ से है और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। आज जो ये कंपटीशन चल रहा है, पाकिस्तान टीम की जो रैंकिंग है इस वक्त वो बड़ी हाईएस्ट जा रही, तो मैं दुआ गो हूँ और बलूचिस्तान के अवाम की तरफ से भी और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हूँ कि आज पाकिस्तान इस मैच को जीते। और आलमी क्रिकेट कप के अहम मैच में आज कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला करेगी। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेट शायकीन पाकिस्तान की कामयाबी के लिए पुरुमीद दिखाई देते हैं।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आज मैच है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह इस मैच में और सेमीफाइनल में भी जाएगा। सारे प्लेयर से भी हमें पूरी उम्मीद है, बाबर आजम से पूरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे, फाइनल में जाएंगे इंशाल्लाह, पूरा पाकिस्तान के जीतेंगे इंशाल्लाह। आज जीतेगा, हमें बहुत आस उम्मीद है उस पर, पाकिस्तान पे कि वो आज जीतेगा। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, रिजवान, इफ्तिखार अहमद अच्छा खेल पेश कर रहे थे, आज भी उम्मीद है आप अच्छा खेलेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में एक और बड़ा इम्तिहान, 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से आज मुकाबला होगा। बड़े टाकरे के लिए खिलाड़ियों के हौसले जवां हैं तो शायकीन भी जीत के लिए पुरजोश हैं। शायकीन क्रिकेट मजीद क्या कहते हैं, जानते हैं मरियम मलिक से। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप में एक और अहम टाकरा आज होगा। शाहीन कैंगरू से पंजा लड़ाएंगे 5 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन रहने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया। अगरचे उनकी कारकर्दगी इस बार इतनी मुतासर कुन नहीं रही, लेकिन तजर्बे साइड उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी की बुनियाद पर वो प्रेशर में और बड़े इवेंट्स में खेलना जानते हैं। मगर शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान के पुरुमीद ज़रूर हैं कि पाकिस्तान आज उनको शिकस्त देकर अपनी जीत का सफ़र जारी रखेंगे और अपना जो खोया हुआ एतमाद था उसको बहाल भी करेंगे। इस वक्त मेरे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनकी फेवरेट टीम आज कौन से तस्वर की जा रही है और कौन सा प्लेयर आज अच्छा परफॉर्म करेगा। जी आई थिंक सो कि पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान पहले भी 2 मैच जीता है और ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैच हारी है, तो आई थिंक सो कि आज पाकिस्तान को जीतना चाहिए और मोहम्मद रिजवान इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा पाकिस्तान के लिए। आज टफ कंपटीशन देख रहे हैं, कैसा देखते हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी ओपनर जो हैं वो पहले 6 ओवर जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के फास्ट बॉलिंग की वो अगर संभल कर खेल जाते हैं तो उनकी स्पिन बॉलिंग भी वो है वो स्ट्रगल कर रही है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के चांसेस हैं। आप बताएं अपनी टीम को क्या मशवरा देते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए? आज बाबर और रजवान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रन करें। उनके रन की वजह से हम एक बड़ा टोटल कर सकते हैं अगर पहले बैटिंग होती है तो। उनके पास देखें मिचेल स्टार्क है, थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और जेम्पा है वो लेग स्पिन में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। हमारी बॉलिंग में भी हमें शाहीन अफरीदी को अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए। हमारी टीम को इनके मशवरे ज़रूर सुनने चाहिए। इसका ये जो बात कह रहे हैं कि बाबर और रजवान को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, क्या हमारी टीम में सिर्फ बाबर और रजवान ही है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं, मिडिल ऑर्डर में भी बैट्समैन हैं, जिस तरह एंड पे हमारे ऑलराउंडर्स हैं, उनको चाहिए कि एंड में अच्छा फिनिश दें। पाक भारत टाकरा तो बड़ा मायूस कौन था, आज की कारकर्दगी कैसी होगी? उम्मीद तो है इंशाल्लाह अच्छी होगी। मिडिल ऑर्डर हमारा थोड़ा वीक है, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए था। शायकीन क्रिकेट पुर उम्मीद है कि आज का मुकाबला अच्छा होगा। दोनों टीम्स अच्छी हैं, बड़ी टीम्स हैं और अच्छा परफॉर्म करेंगी। जी मरियम मलिक, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेले जाने वाले मैच के बारे में बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानीज क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हमेशा ही इंटरेस्टिंग होता है। दोनों वर्ल्ड चैंपियन हैं। पाकिस्तान हैज़ अ पोटेंशियल कि वो आगे जाए और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। If Pakistan can beat Australia, it puts us in good stead with other games to come. All the best wishes to Pakistan. Let cricket be the uniting spirit and the bond between the two countries. ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान एक हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है। उसके लिए अभी से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि मैच हो तो हमारे फ्रेंड्स आकर देखें, इंजॉय करें, फन करें और फिर अगेन जीतना उसी ने है जिसने अच्छा खेलना है। आईसीसी वर्ल्ड कप के 17वें मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हराकर मैच अपने नाम किया और यह मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। पुणे में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 256 रन स्कोर किए। ओपनर्स लिथन दास और तंजीद हसन ने बांग्लादेश को 93 रन का आगाज फराहम किया। लिथन दास ने 66 रन बनाए जबकि तंजीद हसन ने 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दीगर बल्लेबाजों में महमूदुल्लाह 46 और मुशफिकुर रहीम 38 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। भारत की जानिब से मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में भारत ने 297 रन का हदफ 41.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। विराट कोहली ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 103 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। शुभमन गिल ने 53 और कप्तान रोहित शर्मा ने 48 रन बनाए। विराट कोहली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 300s, 350s in one-day internationals.
First time, not for the last time, but he's brought the Spooner crowd. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश ने 4-4, जबकि बाकी तमाम टीमों ने 3-3 मैच खेले हैं। इवेंट में अब तक की नाकाबिल शिकस्त न्यूजीलैंड की टीम अपने चारों मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद है। भारत के भी 8 पॉइंट्स हैं, तहम रन रेट की बुनियाद पर उसकी दूसरी पोजीशन है। 4 पॉइंट्स के साथ जनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान की चौथी पोजीशन है। इंग्लैंड की टीम 5वीं, ऑस्ट्रेलिया 6ठे और बांग्लादेश 7वें नंबर पर मौजूद है। नेदरलैंड्स की टीम 8वें, अफगानिस्तान की टीम 9वें नंबर पर है। अब तक फतह से महरूम श्रीलंका अपने तीनों मैचेस हारने के बाद आखिरी नंबर पर मौजूद है। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने कहा है कि बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम छोटा और बाउंड्रीज नजदीक हैं। कंडीशंस खेल के लिए अच्छी हैं। मैच के लिए हमने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। पीसीबी डिजिटल से बात करते हुए ब्रैडबर्न ने कहा कि हमें ऑस्ट्रेलिया के स्टाइल और ताकत का अंदाजा है। हम जानते हैं कि उन्हें कहां एक्सप्लॉइट करना होगा। ब्रैडबर्न ने कहा कि खिलाड़ियों ने कंडीशन से हम आहंग होने के लिए फ्लड लाइट्स में सख्त प्रैक्टिस की। उन्होंने मजीद कहा कि मैचेस जीतने के लिए खिलाड़ियों को तीनों शोबों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होगी। बॉलर्स के लिए चैलेंज होगा, गलती की गुंजाइश बहुत कम है, बहुत डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक मजबूत बैटिंग लाइन है, लेकिन हमारे पास भी तजर्बाकार खिलाड़ी हैं और बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से कबल न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए हसन अली ने कहा कि भारत से हारने का दुख हुआ, लेकिन नाकामी के बाद खामियों पर तफसीली बातचीत हुई। भारत के खिलाफ मैच में खिलाड़ी हीरो भी बनता है और जीरो भी, और हकीकत यह है कि भारत के खिलाफ हम अच्छा नहीं खेले, जिस पर तनकीद तो होना थी, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं हुई, हमें आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान टीम के लिए इस वक्त जीत जरूरी है, रन रेट खुद ही बढ़ जाएगा। हसन अली ने सहाफियों के सवालों का जवाब मज़ाहिया अंदाज में दिया। कहा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की गाड़ी चलते चलते रुक गई, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में कमी की समरात पाकिस्तानी टीम तक भी पहुंचेंगे और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की गाड़ी भी अच्छे अंदाज में चलेगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने कहा है कि पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है। पाकिस्तानी टीम में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो किसी भी वक्त मैच का पांसा पलटने की सलाहियत रखते हैं। बेंगलुरु में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए पैट कमिंस ने कहा कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। शाहीन एक बेहतरीन बॉलर है, रिजवान भी फॉर्म में है। पैट कमिंस ने मजीद कहा कि बेंगलुरु की पिच बैटिंग के लिए अच्छी है, कोशिश करेंगे कि अच्छी बॉलिंग करें। नाज़रीन, इसी के साथ वर्ल्ड कप स्पेशल से फिल वक्त इतना ही। लिए चलते हैं आपको अब मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया समी। खेलों के मैदान से खबरें आप जान चुके हैं और अब कुछ खबरें शामिल करते हैं कारोबारी मैदान से। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। अब तक 100 इंडेक्स में 331 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 50,697 पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन ये कहते हैं कि हुकूमत की मस्बत पॉलिसीज की बदौलत मईशत में तेजी देखने में आ रही है। मुल्क की बरामदात में इजाफा हो रहा है, जबकि दरामदात नुमाया कमी देखी जा रही है। तजारती खसारे में नुमाया कमी मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहम है, जबकि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 55 पैसे कम हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए और 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। निगरान विफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज ने शंघाई में एग्जिम बैंक के सदर रेन शिंगशिंग से मुलाकात की है। निगरान वज़ीर ने कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे से खित्ते में तरक्की की राहें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि सीपैक के इब्तदाई मरहले से बिजली की बंदिश खत्म और फाजल बिजली की पैदावार में आसानी हुई है, जिससे सनअतकारी की नई मंजिलें तय हो रही हैं। निगरान वज़ीर ने कहा कि निजी शोबों के ताउन से सीपैक के बड़े मंसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करने में पाकिस्तान की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने बताया कि बरामदात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के इलाकाई ममालिक के साथ ट्रांजिट ट्रेड के इम्कानात हैं। बैंक के सदर ने सीपैक के हवाले से होने वाली पेशरफ्त को हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि मंसूबे से पाकिस्तान की गैर मुल्की तजारत पर मुस्बत असरात पड़ेंगे।
निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनी शहरियों पर इसराइली फोर्सेस के इंसानियत सोज मज़ालिम जारी हैं। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सेहूनी तैयारों ने गुज़िश्ता शब खान यूनुस के इलाके में 6 मकानात पर बम बरसाए। सफाकाना हमले में मजीद 21 अफराद शहीद जबकि 79 जख्मी हो गए। गासिब सेहूनी फोर्स ने गाजा में ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी निशाना बनाया जिसमें कम अज़ कम 8 अफराद मारे गए। गाजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइल की जाहरियत में शहदा की मजमूई तादाद 3785 हो चुकी है। शहदा में 1524 बच्चे और 1000 खवातीन शामिल हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की सफाकाराना कार्रवाइयों में अब तक 12,200 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। गाजा की मुकम्मल नाकाबंदी से इंसानी बहरान अलमिया में तब्दील हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतनब्बे किया है कि अगर इसराइल हमास जंग न रुकी तो पूरे खित्ते में तशद्दुद फैल सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गाजा में बमबारी के बाद वहाँ से तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनियों ने नकल मकानी की है जिन्हें फ़ौरी मदद की ज़रूरत है। 20 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदाद की पहली खेप आज मिस्र की रफ़ा क्रॉसिंग से गाजा के लिए रवाना किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब ताकत के नशे में चूर इसराइल ने जल्द ही गाजा में ज़मीनी कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने फोर्सेस से खिताब करते हुए उन्हें ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। दूसरी जानिब मकबूजा मगरबी किनारे में मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ सेहूनी जाहरियत जारी है। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से शहदा की तादाद 74 हो गई जबकि 1300 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। गाजा में इसराइली बर्बरियत के शिकार फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए पाकिस्तान की जानिब से अमली इक़दाम। पाकिस्तान की जानिब से एक खुसूसी तैयारा 81 टन इमदादी सामान लेकर मिस्र पहुँच चुका है। अल अरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर साजिद बिलाल ने इमदादी सामान की पहली खेप वसूल की और उसे हिलाल अहमर मिस्र के सपुर्द किया। पाक फौज और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से भेजे गए सामान में मौसम सरमा के लिए 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल हैं। ये सामान गजा में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हवाले किया जाएगा जिससे मुतासिरीन गजा को फौरी रिलीफ की फराहमी मुमकिन होगी। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है और उनकी हिमायत जारी रखेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज में बरतानवी वज़ीर आज़म रशीद सुनाक से मुलाकात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बरतानवी वज़ीर आज़म रशीद सुनाक पर वाज़ेह किया है कि रियाद गाजा में शहरियों को निशाना बनाने को घिनौना जुर्म और वहशियाना हमला समझता है। बरतानवी वज़ीर आज़म रशीद सुनाक ने सऊदी अरब को मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अपना सुरसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की। बरतानवी वज़ीर आज़म आज मिस्र का दौरा करेंगे। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने तेल अवीव में इसराइली हम मनसब नेतन्याहू से भी मुलाकात की थी। बरतानिया में मैनचेस्टर के इलाके गोटन के मेंबर पार्लियामेंट और शेडो मिनिस्टर ब्राय ट्रेड एंड एक्सपोर्ट अफजल खान ने गाजा में मासूम शहरियों के कत्लेआम बंद करने और इसराइल के गाजा पर हमलों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने बरतानवी पार्लियामान से खिताब में इसराइल और फ़लस्तीन की जंग बंदी के लिए इक़दामात और गजा में मासूम शहरियों के कत्लेआम को बंद करने का मुतालबा किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म रशीद सुनाक के पार्लियामेंट को बताया है कि हम मुश्किल वक्त में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, किसी भी सूरत मुसलमानों के खिलाफ तासुब को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुशीर इंसानी हुकूक मशाल मलिक ने इसराइल की जानिब से गजा में जारी बर्बरियत की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वह फौरी तौर पर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करवाने के लिए दबाव डाले। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गाजा में क़यामत का समा है जहाँ पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। रिहायशी इमारतों और अस्पतालों को बमबारी से तबाह कर दिया गया है। मासूम और शीरखार बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मुशीर इंसानी हकूक ने कहा कि इसराइल इंसानी हकूक की धज्जियाँ उड़ा रहा है, हमें उसके मज़ालिम बंद कराने के लिए आगे आना होगा। उधर गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 11 दिन बाकी हैं। गैर कानूनी बाशिंदों को 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मजीद 1 दिन की मोहलत फराहम न करने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ऐलान किया गया है कि ऐसे तमाम इलाकों में एक्शन किया जाएगा जहाँ गैर कानूनी गैर मुल्की आबाद हैं। इन अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो उनको पनाह देंगे। मुअय्यना मुद्दत के बाद गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान न छोड़ने की सूरत में गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान 40 साल से अफगान पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी कर रहा है। अब हुकूमती अहकामात के मुताबिक अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी का मरहला शुरू हो गया है। अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी खित्ते में पायदार अमन और मुआशी इस्तेहकाम का ज़ामिन है। 1 अक्टूबर को एपेक्स कमेटी इजलास के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क छोड़ने की हिदायत दी गई। गुज़श्ता रोज 3248 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए, जिनमें 1760 बच्चे, 778 मर्द और
410 खवातीन शामिल थीं। अब तक पाकिस्तान से 51,756 अफगान पनाह गुज़ीन अपने वतन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की स्कैनिंग का सिलसिला जारी है। ज़िले इंतजामिया और पुलिस की जानिब से बाजावड़, मोहम्मद एजेंसी, खैबर, सवात, दी और चित्राल में मुकीम गैर मुल्कियों के कवायफ चेक किए जा रहे हैं। कवायफ की जांच पड़ताल के अमल में अवाम भी कलीदी किरदार अदा कर रही है। ज़िले इंतजामिया और पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इंतबाह किया जा रहा है कि हर सूरत 31 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ दें। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर 2023 की डेडलाइन दी गई है। और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन के वतन वापसी की मोहलत में कमी के साथ साथ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हो गए हैं। अटक में पुलिस ने गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना हुजरो पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया जो चमन बॉर्डर से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ और बगैर अफगान मुहाजिर कार्ड रिहाइश पजीर हुआ। फतेह जंग पुलिस ने गैर कानूनी रिहाइश पजीरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर हसन अब्दाल पुलिस ने नाके पर मोटरसाइकिल सवार को रोका जो गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिर निकला। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ दुबई में इसहाक डार के बेटे अली डार की रिहाइशगाह पर हुसैन नवाज, हसनैन डार और राशिद नसरुल्लाह के हमरा पहुंचे। फैमिली के अफराद ने मुस्लिम लीग नून के कायद का इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तैयारियां अरूज पर हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। साबिक डिप्टी मेयर इस्लामाबाद सैयद ज़ीशान अली नकवी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के वतन वापसी के हवाले से जुड़वा शहरों में डिजिटल मीडिया कैंपेन के लिए स्क्रीनों पर तशहीर शुरू कर दी गई है। डिजिटल मीडिया कैंपेन में नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ दिखाई जा रही हैं जिनमें पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ की कुर्बानियाँ और बतौर वज़ीर आज़म मुख्तलिफ मनसूबों की तकमील की वीडियो शामिल हैं। 8 मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब स्क्रीनों पर हर 2 मिनट के बाद 16 सेकंड्स के लिए ये वीडियो दिखाई जाती हैं। और अब रुख करते हैं कराची के सिटी स्टेशन का, जहां मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हैं। अब से कुछ देर बाद मुस्लिम लीग नवाज के कायद के इस्तकबाल के लिए कराची से मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन बजरिया ट्रेन लाहौर रवाना होंगे। वहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे सुहेल जमाली। मजीद तफसीलात उन्हीं से मालूम करते हैं। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी, कराची के सिटी स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान और रहनुमा जमा हैं। बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पाया जा रहा है कारकुनान के दरमियान। और रहनुमाओं ने जो मीडिया से बात करते हुए कहा है, उन्होंने बताया कि कराची से तकरीबन 11,000 कारकुनों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी। उसके अलावा बसों से, कारों से और दूसरे ज़राए से कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में लाहौर पहुंचेंगे, जहां वो अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान की मईशत का सफ़र मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद वो दोबारा इसी तरह शुरू करेंगे जिस तरह 1990 में, 97 में और 2013 के अदवार में किया था। हमारी साबिक सेनेटर निहाला हाशमी से बात हुई, उन्होंने बताया कि सिर्फ कारकुनान ही नहीं, आवाम में जो जोश व खरोश पाया जाता है कि बहुत पहली मरतबा हो रहा है उनके मुताबिक कि कराची से बहुत बड़ी तादाद में लोग ही नहीं, आवाम भी उनके मुताबिक बड़ी तादाद में कारकुनान के साथ आवाम भी उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। कराची में इस हवाले से बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पाया जा रहा है। जी शुक्रिया सुहेल जमाली आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कोयटा से बजरिया ट्रेन लाहौर रवाना हो गए हैं। कारकुनान के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई कायदीन भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन से भी डेरा मुराद जवारी से मजीद कारकुनान भी सवार होंगे। कारकुनों को लेकर खुसूसी ट्रेन कल सुबह लाहौर स्टेशन पहुँचेगी। और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह गिलगित बल्तिस्तान से भी मुस्लिम लीग के काफिले अपने कायद के इस्तकबाल के लिए रवाना हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान से मुस्लिम लीग नून के सूबाई वजीर ज़राअत इंजीनियर अनवर और सेक्रेटरी जनरल अकबर ताबान की क़यादत में 300 से ज़ायद गाड़ियों पर मुश्तमिल हज़ारों कारकुन काफिले में शरीक हैं। इंजीनियर अनवर कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से पार्टी कारकुनान कल मीनार पाकिस्तान में अपने पार्टी कायद के इस्तकबालिया जलसे में शिरकत करके अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान से मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन अपने कायद नवाज शरीफ से दिली मोहब्बत रखता है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है आज़ान जुमा का। आइए आज़ान सुनने की सादत हासिल करते हैं।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल और मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक दरखास्तों की समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में नया 5 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा ए मलिक शामिल हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 90 रोज़ में इंतखाबात और मुल्क भर में एक ही रोज़ आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्ला बेंच का हिस्सा होंगे। 90 रोज़ में आम इंतखाबात से मुतालिक मुकदमे की समाअत 23 अक्टूबर, जबकि मुल्क भर में एक ही रोज़ आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक मुकदमे की समाअत 24 अक्टूबर को होगी। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पर 24 अक्टूबर को फर्द जुर्म को आयद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हुए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तामील की हिदायत की है। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के माबैन शदीद झड़पें। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके घरियों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज से घेरे में ले लिया और मौसर कार्रवाई के नतीजे में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक शुदगान में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों का सरगना हजरत जमान उर्फ खारवे मुल्ला भी शामिल है, जो दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस और इंतहाई मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान वतन के 3 जर्री फर्जंद दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहदा में लांस नाइक तबस्सुमुल हक, सिपाही नईम अख्तर, सिपाही अब्दुल हमीद शामिल हैं। लांस नाइक तबस्सुमुल हक शहीद की उम्र 36 साल, ताल्लुक रावलपिंडी से था। सिपाही नईम अख्तर शहीद की उम्र 30 साल, ताल्लुक अटक से था, जबकि सिपाही अब्दुल हमीद शहीद की उम्र 23 साल और ताल्लुक मुल्तान से था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दूसरा ऑपरेशन जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला हुआ।
दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही फरमान अली जाम शहादत नोश कर गए। सिपाही फरमान अली शहीद की उम्र 25 साल, ताल्लुक कश्मीर से था। नवाही इलाके में मौजूद किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की लाजवाल कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। दिफाई वतन में जान कुर्बान करने की कई अनसुनी दास्तानों में एक कहानी मेजर कैसर महमूद शाही शहीद की है, जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से था। उन्होंने 1999 में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 2009 में ऑपरेशन राह निजात के दौरान शीशम वाम के पहाड़ों पर तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। मेजर कैसर महमूद शाही शहीद ने सोगवारान में बेवा, बेटी और बेटा छोड़ा। शोहदा के लवाहिकीन कहते हैं कि उनको मेजर कैसर महमूद की शहादत पर फख्र है। कोई नहीं लगी है ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ मेरी मौत शहीद ਦੇ ਵਿੱਚ। तो और इंसान भी बहुत अच्छे थे और सिर्फ एक रिश्ते में नहीं, वो हर रिश्ते में बहुत अच्छे, बहुत मुकम्मल। और कभी कभी तो उनकी इतनी मुकम्मल नेक होने से डर लगता था। वो जब ऐसे कोई बहुत अच्छी बात करते थे मुझे डर लगता था कि इतनी वो ना करें कि इतने जो कामिल इंसान होते हैं ना वो बचते नहीं हैं। लेकिन वो जो डर था, खदशा था, वो सही साबित हो गया। और उन्होंने कभी किसी की हक तलफी नहीं की, कभी झूठ, किसी की ग़ीबत, किसी की इंतहाई बामुरव्वत, लिहाज, अदब, हर किसी के साथ बहुत ही अच्छे इंसान थे। हम बस अब ये दुआ करते हैं कि ये जो कुर्बानी है ना ये रंग ले आएगा ना। अप फ्रंट, लेकिन हम उसे खामोश रखेंगे तो उसका क्या आप जवाब देंगे? अगर कमेंट्स कह रहा है कि शाहीन थ्रेट है और आप कह रहे हैं कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो दैट्स द पॉइंट। और कोशिश मेरी यही है कि जो मुझसे टीम डिमांड करती है उसी को मैं अप्लाई करूं, नई चीज़ें अप्लाई ना करूं। फैंस को क्या मैसेज देंगे बैक होम? फैंस को यही है कि हमेशा आप लोगों ने पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शाहीन शाह आफरीदी बेंगलोर में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन बॉलर्स का स्क्वाड मौजूद है और शायकीन को कहेंगे कि जिस तरह वो हमें पहले सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान एक अहम मैच जो है बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर जो है वो हो रहा है। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि शिमाली इलाका जात में रात के औकात में सर्द रहेगा। ताहम जनूबी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। ताहम कोयटा और गिलगित में बूंदाबांदी हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह में -3 और कालाम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। और यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।